Hi everyone. So, as you know, the NABARD Grade A short notification has been released for 85 vacancies for Assistant Manager Grade A in NABARD. The start date of application form is 8th of November and the last date is 30th of November. Okay. And the expected examination dates for phase 1 are 28th December. Most probably यही होगा. बाकी हमें 8 तारीख को बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा. So when we target any particular examination, we need to know everything about that exam. So here in this video, I'm going to tell you everything about this position, about this exam. We'll talk about the syllabus, the exam pattern, the eligibility, the salary, the promotions, everything we are going to discuss in this particular short video. चलिए start करते हैं. First of all, my dear friends, with the eligibility, because that is something which is very important to know whether you are eligible or not. So if I talk about the unreserved category, so any graduate with 60% marks, I am talking about generally stream. ठीक है, मैं सिर्फ जनरली स्ट्रीम की बात करूंगा. ठीक है, तो एनी ग्रेजुएट विद 60% मार्क्स इज एलिजिबल या फिर पोस्ट ग्रेजुएट विद 55% मार्क्स, इन दोनों में से कोई भी एक है तो चलेगा. यानी कि इफ फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैवंट स्कोर्ड 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन बट यू हैव स्कोर्ड 55% or more in post graduation, that will work, right? If you are from SC, ST or PWBD category, then in that case any graduate with 55% marks or postgraduate with 50% marks, right? Now this is same UR category वाला जो है, that is same for EWS and OBC. EWS and OBC category people are not going to get any relaxation in terms of percentage in the eligibility. And all the CA, CS, ICWA or PhD candidates are also eligible for the generalist stream regardless of course their percentage. ठीक है, वहां पे कोई परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है. अगर आप CA हैं, CS हैं, ICWA हैं या फिर आपने PhD कंप्लीट कर रखी है, देन यू आर एलिजिबल. ऑलराइट, टॉकिंग अबाउट एज एलिजिबिलिटी, अगर हम एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो फॉर अनरिजर्व कैटेगरी मिनिमम 20 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेन्ड 30 ईयर्स, यानी कि 21 ईयर्स आपके होने चाहिए कंप्लीट और 30 ईयर्स आपके कंप्लीट नहीं होने चाहिए. एंड एज पर द प्रीवियस ट्रेंड्स, जो कट ऑफ डेट रहेगी फॉर द एलिजिबिलिटी दैट विल बी 1st of November, क्योंकि जिस महीने नोटिफिकेशन आता है द फर्स्ट डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ इज कंसिडर्ड एज द कट ऑफ डेट. So here in this case the notification is released in the month of November. So most probably बाकी हमें detailed notification जो 8 तारीख को आएगा उससे पता चल जाएगा. Most probably the cut off date for eligibility will be 1st of November. SC and ST category are having a 5 years of age relaxation in the upper bracket of course. OBC are having the age relaxation of 3 years. PWBD candidates are having the age relaxation of 10 years in case of UR and EWS PWBD category. For OBC PWBD person 13 years, for SC ST PWBD candidate 15 years. ठीक है, that is the eligibility criteria with for the age. Moving ahead to the exam pattern. अगर हम phase 1 के exam pattern की बात करते हैं, so there will be 200 questions. ठीक है, and a composite 2 hours will be provided. ठीक है, अ कंपोजिट 2 hours माय डियर फ्रेंड्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू. ठीक है, 200 क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे होंगे. देयर इज नो सेक्शनल टाइमिंग, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है. इसका मतलब ये है दैट यू कैन स्विच बिटवीन द सेक्शंस एंड द क्वेश्चंस फ्रॉम 8 सब्जेक्ट्स विल बी आस्क्ड. क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर, क्वांट, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. नबार्ड की अच्छी बात यह है दैट ये आपको पहले से ही ESI और ARD यानी कि फेज 2 के लिए प्रिपेयर करवा देता है. ठीक है, कितने कितने क्वेश्चंस होंगे? रीजनिंग में 20, इंग्लिश में 30, कंप्यूटर में 20, क्वांट में 20, डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 20, ESI 40 एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अगेन 40. ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स सबके जितने क्वेश्चंस उतने ही मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि 1 mark फॉर ईच क्वेश्चन. यू विल बी गेटिंग 1 mark फॉर ईच क्वेश्चन एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर, यानी कि अगर आप इफ यू अटेम्प्ट रॉन्ग आंसर देन 0.25 marks will be deducted. And as I already told you, you will get a composite time of 120 minutes for all the tests together, which means you can switch between the sections. The most important fact about the phase 1 exam is your merit is going to be decided based on these subjects 6, 7 and 8, general awareness, ESI and ARD, right? यानी कि 100 में से आपका मेरिट बनेगा और जो बाकी 100 है यानी कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड डिसीजन मेकिंग, उसमें आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करने हैं. ठीक है, वो क्वालिफाइंग है, उसमें आपको सिर्फ जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स नबार्ड डिसाइड करेगा, जो कि बहुत कम होते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर रीजनिंग का 20 है तो 6-7 नंबर होते हैं. ठीक है, इतने आपको बस स्कोर करने होंगे. दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर क्वालिफाइंग. ठीक है, तो मेरिट आपकी जो बनेगी दैट विल बी बेस्ड ऑन जनरल अवेयरनेस,
ESI and ARD, यानी कि 20 क्वेश्चन फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, 40 ईच फ्रॉम ESI and ARD, राइट? आई होप इट इज क्लियर, आई होप देयर आर नो कंफ्यूजन्स। टोटल 200 नंबर का होगा, 100 मार्क्स में से मेरिट बनेगी, यानी कि कट ऑफ विल बी out of 100, and the rest of the 100 marks, that is quant, reasoning, English, computer and decision making, that will be decided, that will be qualifying in nature, you have to just qualify them, ठीक है? जो लोग appropriate कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, those guys will be qualified for phase 2, and in phase 2 there will be 2 papers। phase 2 में दोस्तों 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इंग्लिश, जनरल इंग्लिश होगा, जो कि ऑनलाइन पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव, यू हैव टू टाइप ऑन द कंप्यूटर, ठीक है? देयर विल बी 3 क्वेश्चंस, ठीक है, और मार्क्स होगा 100। 3 क्वेश्चंस में एक तो ऐसे होता ही है पक्का, ठीक है, एक आरसी होता है और एक लेटर होता है या फिर प्रेसी राइटिंग होता है, ठीक है? ऐसे, आरसी, लेटर और प्रेसी, ऐसे जनरली 40 मार्क्स का होता है, आरसी 30 और लेटर और प्रेसी भी 30-30 के होते हैं, ठीक है? लेटर और प्रेसी में से जनरली एक ही आता है, एंड ज्यादातर नाबार्ड में हमने देखा है कि लेटर राइटिंग पूछा जाता है, ठीक है? तो 100 मार्क्स का ये होता है, यू विल गेट 90 मिनट्स एंड डिस्क्रिप्टिव आंसर्स टू बी टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड, राइट? और फिर एक कंबाइंड पेपर, पेपर 2 होता है, ईएसआई एंड एआरडी का, ठीक है? अगेन इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी एंड डिस्क्रिप्टिव भी। ऑब्जेक्टिव देयर विल बी 30 क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स, 30 क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स, और इसका जो ब्रेकअप होता है वो होता है 20 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, दैट इज 40 मार्क्स, एंड 10 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क, दैट इज 10 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया? 50 मार्क्स, राइट? क्लियर? एंड फॉर दिस यू विल बी गेटिंग 30 मिनट्स, एंड राइट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 30 मिनट्स आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस खुल जाते हैं, जो कि अगेन ईएसआई एंड एआरडी से होते हैं। 3 क्वेश्चन ईएसआई के होते हैं, 3 क्वेश्चन एआरडी के होते हैं, ठीक है? टोटल यू आर गोइंग टू हैव 6 क्वेश्चंस, ठीक है? टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे, इनमें से 3 क्वेश्चन का डिवीजन होता है। 3 क्वेश्चंस विल बी 15 मार्कर एंड 3 क्वेश्चंस विल बी 10 मार्कर्स। आउट ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस यू विल हैव टू अटेम्प्ट 2, ठीक है? यू विल हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस, एंड आउट ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस अगेन यू विल हैव टू अटेम्प्ट 2। तो 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20, एंड 15 इंटू 2 कितना हो गया? 30। तो टोटल ये भी कितने का होता है आपका? 50 मार्क्स का, एंड फिर दिस यू विल बी गेटिंग 90 मिनट्स, ठीक है? तो टोटल ईएसआई और एआरडी का जो पेपर होगा, दैट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, 30 मिनट्स ऑब्जेक्टिव एंड 90 मिनट्स डिस्क्रिप्टिव। क्लियर है? ठीक है। तो दैट वाज द फेज 2 एग्जाम पैटर्न। फेज 2 जो भी क्लियर करते हैं, ठीक है, कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इन फेज 2 आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, एंड ऑफ कोर्स देयर इज नो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ फॉर फेज 2, देयर विल बी अ कंबाइंड कट ऑफ आउट ऑफ 200, ठीक है? कंबाइंड कट ऑफ होगा आउट ऑफ 200, 100 फॉर इंग्लिश एंड 100 फॉर ईएसआई एंड आरडी, ठीक है? ओनली ओवरऑल कट ऑफ विल बी देयर एंड द इंटरव्यू मार्क्स इज 50, ठीक है? एंड योर फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 2 एंड इंटरव्यू, एंड नॉट द फेज 1। फेज 1 के मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए काउंट नहीं किए जाते हैं, ठीक है जी? क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। मूविंग अहेड टू द सिलेबस, अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। फेज 1 के सिलेबस की बात करें तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का माय डियर फ्रेंड्स सिलेबस इज वेरी सिंपल, जो कि जनरली हर एग्जाम में होता है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एनी बैंकिंग एग्जामिनेशन, तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सिलेबस इज सेम। सो हियर यू कैन सी, यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। सिलेबस क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग का नबार्ड देता नहीं है, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो अगेन बेसिक जनरल अवेयरनेस लाइक नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज, स्टेट न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम्स, डिफेंस न्यूज, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, बैंकिंग एंड इकोनॉमी, आरबीआई वेबसाइट। फाइनेंस करंट अफेयर्स आपको यहाँ नहीं करना, आरबीआई वेबसाइट भी नहीं करना, अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड, स्पोर्ट्स एंड एनुअल सर्विस। तो ये है, लास्ट ईयर हमने देखा था कि कुछ फाइनेंस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे, तो मेरे सजेशन आप लोगों से यही रहेगा कि थोड़ा बहुत फाइनेंस करंट अफेयर्स जरूर देख के जाएं लास्ट के 3 से 4 महीने का। देन इंग्लिश की बात करें तो बेसिक सिलेबस है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, डबल फिलर्स, एरर डिटेक्शन एटसेट्रा। यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। कंप्यूटर अवेयरनेस का सिलेबस आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, सो दिस सिलेबस आई हैव क्रिएटेड बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर पेपर्स। तो किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड मेमोरी, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस से बहुत सारे शॉर्टकट्स पूछे जाते हैं, इंटरनेट एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स पूछे जाते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक एंड लॉजिक गेट्स, कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन, कंप्यूटर कंपोनेंट्स से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए। तो कंप्यूटर का ये सिलेबस रहता है। टॉकिंग अबाउट डिसीजन मेकिंग, 10 नंबर का होता है डिसीजन मेकिंग, और इसने बहुत लोगों को रुलाया है, बिकॉज पीपल टेक इट वेरी लाइटली, पीपल टेक इट फॉर ग्रांट। तो इसलिए आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। ये सिलेबस है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग इज नथिंग बट मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई। कुछ टॉपिक्स है मैनेजमेंट के, अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे थे तो उसमें से कुछ टॉपिक्स होते हैं मैनेजमेंट के, दैट आई विल टेल यू लेटर। वो पढ़ लेंगे तो योर डिसीजन मेकिंग विल बी डन, ठीक है? इसमें टॉपिक्स क्या क्या है, बेसिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, टाइप्स,
decision making models, decision making approaches, factors affecting decision making and the problems which are there in the decision making. ठीक है, फिर अगर हम फेज 2 के सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों, सो दैट इज प्रोवाइडेड इन दी नबार्ड्स नोटिफिकेशन इटसेल्फ, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ईएसआई का ये है, ये एआरडी का है पूरा सिलेबस, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको उसमें मिल ही जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सैलरी पे, जिसका इंतज़ार सब लोगों को होता है। तो अगर हम इसकी बेसिक पे की बात करें तो 44,500 है, लेकिन सारे अलाउंसेस लाइक डियरनेस अलाउंस, लोकल कंपेंसेटरी अलाउंस, एचआरए, ग्रेड अलाउंस मिला दें तो योर अप्रॉक्सीमेटली सैलरी विल बी 1 लाख रुपीज। बट दिस इज नॉट इट, इसके अलावा यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ परक्विजिट्स लाइक टेलीफोन चार्जेस, बुक ग्रांट, अलाउंस फॉर फर्निशिंग ऑफ रेजिडेंस, मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, फ्री डिस्पेंसरी फैसिलिटीज, है ना, interest free festival advance, leave travel concessions, loans and advances at concessional rate of interest for housing, car, education, children। तो ये सब मिला देते हैं अगर हम, तो आपकी सैलरी अराउंड बनती है 125 to 130 के, विच इज आई बिलीव अ गुड एंड डिसेंट सैलरी टू स्टार्ट विद। ठीक है, 125 to 130 के आसपास बनती है, बट इसका जो रिवीजन है, इसका सैलरी रिवीजन जो है वो ड्यू है। So most probably by the end of this year or maybe by the end of this financial year, the salary will be revised and of course it is going to be increased because RBI ने increase करा है, SEBI ने increase करा है। So now is the time for NABARD that the NABARD increase the salary of its officer। क्लियर है जी? ठीक है, अब हम आखिरी बात करेंगे प्रमोशन की दोस्तों, थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में समझेंगे प्रमोशन को। प्रमोशन, आप यू विल ज्वाइन एज ग्रेड ए ऑफिसर एंड फ्रॉम गेटिंग getting from grade A to grade B, it will take approximately 4 years। प्रमोशन वैकेंसी बेस्ड नहीं है, सिर्फ एक इंटरव्यू होता है एंड देयर विल बी अ सैलरी हाइक ऑफ रुपीज 15,000। 1.5 लाख से 2 लाख आपकी सैलरी हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन द पोस्टिंग। ठीक है जी, आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। फिर ग्रेड बी से ग्रेड सी में जाने के लिए अगेन इट विल टेक 5 ईयर। प्रमोशन जो होगा वैकेंसी बेस्ड होगा, ठीक है, इसलिए कभी कभी 4 साल में भी हो जाते हैं, कभी 5 साल में हो जाता है, कभी 6 साल में हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसी। इंटरव्यू होता है इसके लिए भी एंड देयर विल बी अ सैलरी हाइक ऑफ 25,000 एंड योर सैलरी विल रेंज फ्रॉम 2 लाख टू 2.5 लाख। ग्रेड सी से ग्रेड डी में जाने के लिए दोस्तों इट विल अगेन टेक 4 to 5 years एंड हेयर यू विल हैव टू गिव अ रिटन टेस्ट। ठीक है, सी से डी जाने के लिए आपको इंटरव्यू और रिटन टेस्ट दोनों देना पड़ता है एंड देयर विल बी सैलरी हाइक ऑफ 50,000। 50,000 का सैलरी हाइक होता है सीधा, राइट। और ये सैलरी ऑफ कोर्स ये रिवाइज अगर हो जाएगी तो ये इंक्रीज ही होगी। ग्रेड डी से ई में जाने के लिए अगेन देयर विल बी इट विल टेक अराउंड 4 years। प्रमोशन वैकेंसी बेस्ड होता है और इंटरव्यू पे के बेसिस पे आपका प्रमोशन होगा। द सैलरी हाइक विल बी 20,000 to 30,000 एंड सैलरी हो जाएगी आपकी 3.5 से 4 लाख के आसपास। ई से एफ में जाने के लिए अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर करियर प्रोफाइल। मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स गेट रिटायर एट ग्रेड ई पोजीशन। ग्रेड एफ तक बहुत ही कम जा पाते हैं। ग्रेड एफ इज सीजीएम, चीफ जनरल मैनेजर। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपके करियर प्रोफाइल के ऊपर, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, एंड देयर विल बी अ सैलरी हाइक ऑफ 40K to 50K। तो क्या हम यहीं तक जा सकते हैं? नहीं जी, आप डेप्यूटी एमडी भी बन सकते हैं, बट दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट अगेन डिपेंडिंग ऑन योर depending on your performance, and you can also go up to the chairperson भी आप बन सकते हैं। बट ऑफ कोर्स यहाँ तक ऑब्वियसली मैं आपको बता दूं, मैं कोई हसीन सपने नहीं दिखा रहा आपको, भैया आप तो चेयरपर्सन बन ही जाओगे। ऑफ कोर्स नहीं बनोगे। अगर आप 85 लोग सिलेक्ट होगे, हो सकता है 0.01% की प्रोबेबिलिटी कि आप में से कोई एक चेयरपर्सन शायद बन जाए। ठीक है, वरना ग्रेड ई और ग्रेड एफ तक, ग्रेड ई तक तो जाओगे ही जाओगे। ठीक है, तो ये था my dear friends everything about NABARD grade A। I hope it is clear। If you want to have more information regarding this particular examination, I will be coming up with a lot of videos, a lot of informative videos on NABARD grade A exam। ठीक है, so you can just scan this QR code and join the Telegram channel to have all the information। Thank you very much for being with me and I wish you all the best for the NABARD grade A examination। Goodbye, take care and God bless।